Welcome to Brahma Kumari's Shanti Sarovar, and special welcome for today's special topic, Sunday evening talk. Every week you have a lot of knowledge, not only knowledge, the wisdom which you get. Through this, you are enriching your life. Yes? You feel that? Yes? So today, special welcome to you for another episode of Sunday evening talk on success mantras. Will there be any mantras for success? Chant this mantra so that you will be successful. Will there be that? If that would happen, then no one would be a failure in life. All the time, only success. Will that help us to progress? Only success? So one needs to know how to handle the success also, which is very much important, because nowadays many youngsters, in every phase of the life, I am very good, I am getting opportunities, I am only successful. No failure at all. And at the end of the day, in life, means they are progressing in career or their education and so many financial things, all those things. But to manage their life, that is very difficult for many, because they don't know how to use the success to handle their life. So today, taking this subject, a very, very successful divine brother is amongst us. I welcome cordially Dronacharya Ramesh Nagapuri Garu for today's talk on success mantras. Very special person, very humble, very, very humble, but very polite, very down to earth, and he knows how to handle the success also, because he is not only just I'm going to talk about his success, what he is in the life, in the name of career or achievements, but what I understood over a period of time, all these years from him, he is a very good, valued human being. All the values are there in him. He is like a yogi. He internalized the knowledge, the spirituality, and he is practicing in his own way, which he is helping to others. Just now I was hearing that how he trained, and I know few of you are here who is training by him today. So he is choosing the athletes or the players from very, very financially very poor, or educationally they are very less, but still they are very good in bringing laurels to the country. So who would be that kind of guru who can train all the means poverty line के नीचे जो रहते हैं उन लोगों को चूज़ करके उनको ऐसे कोच करना और उनको ऐसे ऊपर उठाना, कौन सी गुरु होते हैं ऐसे. तो आज हमारे बीच में है रमेश नागपुरी जी, हु इज़ द्रोणाचार्य अवॉर्डी, नेशनल कोच फॉर एथलेटिक्स, सीनियर एथलेटिक्स कोच एंड फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. And his achievements are many, which I like very much is he represented India as a coach for Indian athletic teams at Olympics, 5 Olympics. Starting from 2004 to now, he was, other day when we met, he was saying maybe in 2024 Paris Olympics also he will be part of it. So not decided it, but we all bless him to attend these Olympics also. And 6 years now, 6 Olympics he would be covering by now. As a fitness coach for Indian men hockey team at Sydney Olympics, as a fitness coach for Deccan Chargers and Hyderabad Ranji team also,
worked as fitness coach in various sports like tennis, badminton, hockey, and cricket. And he trained many, whom we say celebrities today. And he made, means not only just he coached them in fitness field, but he has given life for them with lots of morals. So one is Duti Chand, who is Arjun Awardee and Olympian, and Geeta, Satya Geeta, Arjun Awardee again, M.R. Povma, who is Arjun Awardee, and many others. VVS Lakshman also, Padma Shri Awardee, Mukesh Kumar, hockey player, who is Padma Shri Awardee again. So like that, from humble beginning he started, but now he is in that position where he is helping out many and has lot of love for India, and he is helping many, many, many Indians. So success is yours, and we'll want to learn from his practical experience how spirituality, meditation, positive thinking, purity, all these things, how they are helping him to be successful in life as well as in career. So I request Brother Vamshi to present and welcome brother with bouquet. So वंशी भाई को आप सब जानते हैं, सीनियर ब्रदर है शांति सरोवर में, ब्रह्मा कुमारीज में. भाई साहब रमेश भाई को वेलकम कर रहे हैं आप सबके तरफ से. Om Shanti. So today I am here to share my own journey, right? How I use spirituality, right? How means converted all those things in tough times and in good times. How you have to be. That's what I want to do, because it's a good institution, right? They give an opportunity for me to share. I definitely it may be useful for all of us to take forward a better society, better world. All right. So yeah, first how my sources of inspiration, spiritual. Actually, it was my journey started in 1992. I joined Diploma in Coaching Athletics Bangalore. So how sometimes if your destiny decided by nature, we have to be very aware and more alert when nature keeps giving you the signals and guidance. If you are more occupied with material things, you may be missing out such chances. And I can say today, it's not me I have decided. Rather I can say it's a nature and destiny, right? I say this was 1992. I joined Diploma in Coaching Bangalore. So the classes started. We were having 25 to 27 students. Out of them, 11 were from Army, right? So there, that time I did a Master of Physical Education. So that 11 Army people, for whatever doubt, they used to come to me. So I used to clarify the doubts and so like that. So there was a test. For every month they have a test. So in that test, that 11 Army people got more marks than me, right? So weekends they drink and they have a fun. So they were making fun. अरे इस रमेश के पास हम लोग जाके सीखते हैं, उसको ही कम मार्क्स आ गए. तो हम उससे अच्छे हैं, तो उसको क्या पूछे. तो बट रियली मैंने सोचा एवरी 3 months सेमिस्टर एग्ज़ाम्स, राइट. तो मैंने ये डिसाइड कर लिया, भाई कम से कम इनसे तो ज़्यादा मार्क्स लाना ही लाना है आपको, राइट. सो आई डिसाइडेड दैट. सो morning activity and 12:30 theory classes over, then 4:30 again practical classes starts. So everybody sleeps because they get dead tired. But that time I used to use library. I used to go library because I must get marks better than these 11. That's all. That was my intention. So in the semester exams, not only getting more marks than this 11, I topped the class. So I became a topper in first semester. So there is no other option for you.
You have to maintain that because every lecturer will come and ask any question nobody is able to tell. They will ask you. So that made me to be in top two. I'm telling the destiny how the situation, right? So that's how I started working hard, right? So luckily I was a top in the 1992 batch. And another lucky and destination I can say that was the last batch from Sports Authority of India. Whoever tops the group batch, they will be given direct job without interview, without applying. So really here that point really still many people ask me almost 20 years 29 years over my service, they say how you are able to keep that dedication commitment, but somewhere that point, yeah, you have been given job without applying, without interview, without bribe, so you have to give back. So please, I'm telling here, maybe some good officers and you're giving employment or, and please see that initial stages, if anybody is given this, definitely they will be doing a best job in their lives. थोड़ा सा काम हम अच्छा करने से, अभी पुलिस ट्रेनिंग कैंप्स में मैं जाता हूँ, वहाँ पर भी यही इंसिडेंट होता है यार, आप लोग अगर विदाउट ब्राइब, विदाउट डिफ़िकल्टी अगर आपको जॉब मिलता है तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदर लगता है यार मेरे को नेचर ने फ्री दिया है तो मुझे कुछ ना कुछ करना है. अब क्या है, उल्टा हो रहा है ना, बिकॉज राइट फ्रॉम अप्लाइंग एवरीवेयर, सी पीपल से दैट राइट इन क्यूबा द बेस्ट डॉक्टर्स, क्यों? क्योंकि 6 years में आपको एक भी रुपया नहीं लगता है. सो दैट इज द रीज़न दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड. तो दिस इज़ व्हाट वन थिंग आई स्टार्टेड. देन जब मैं साई में ज्वाइन किया, सो फर्स्ट कैंप मुझे 1996 में, बिकॉज आई वॉज डूइंग गुड रिजल्ट, सो दे हैव गिवन मी द इंडियन कैंप. सो नेशनल कैंप होते हैं, सो जूनियर इंडियन कैंप. तो इट वॉज फर्स्ट कैंप वॉज देयर इन शिलारू, बिकॉज इट्स 60 kilometers फ्रॉम शिमला एंड जस्ट 350 kilometers फ्रॉम चाइना बॉर्डर, राइट. पूरा हिल एरिया रहता है सब. तो वहाँ मैं जाने के बाद में देर वर 2 things. आई वॉज क्वाइट यंग बिकॉज 1996 मीन्स एनीबडी कैन रियलाइज, राइट. 99 आई होप, या 99. तो मुझे 2 challenges, एक क्या करना है, हमें प्रूव करना है उधर, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन यू आर इन टू द नेशनल सीन. ये आपको प्रूव भी करना है और घर से दूर और पूरा पहाड़ी इलाका, सुबह शाम ट्रेनिंग के सिवा कुछ नहीं रहता है उधर. तो और माहौल ऐसा है, यू हैव ए हिल कंप्लीट शिलारू, मतलब हिल, आपको सुबह सुबह आइस भी होता है, मतलब यू कैन सी दैट आइस, पूरा आइस दिखता है पूरा हिल्स. तो इट्स ब्यूटीफुल. तो फिर मैंने धीरे सुबह में थोड़ा प्रेयर करना शुरू किया. उस ठंड में भी कुछ ना कुछ तो अलग करना है आपको, नहीं तो बिकॉज हाउ कैन डील विद दैट प्रेशर. तो मैंने सुबह फिर स्नान, उतने ठंडी में भी स्नान करके थोड़ा बहुत प्रेयर करना शुरू किया वहाँ से. फिर शाम को ट्रेनिंग के बाद में फिर थोड़ा मेडिटेशन शुरू किया. फिर इट स्टार्टेड गिविंग मी यार सम स्ट्रेंथ इनसाइड. ये लोनलीनेस, ये प्रेशर टू प्रूव समथिंग, टू टेक बिकॉज इंडिया टू ए डिफरेंट लेवल, मुझे अच्छा लगने लगा, मतलब अंदर से. मैं स्पिरिचुअल सुबह में, फिर शाम को मेडिटेशन. आई स्टार्टेड स्लोली एंजॉइंग दैट. फिर मैंने केम इन द कैंप्स, ब्रेक कैंप में हैदराबाद आया था. फिर हैदराबाद से मैं फिर ट्रेन में जा रहा था, तो खाजीपेट में वो ब्रेक AP एक्सप्रेस था, जब ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ ट्रेन रुकता था 5 minutes के लिए. फिर मैं ब्रेकफास्ट के लिए उतरा तो एक बुक स्टॉल्स होते थे ना, बंडी, वहाँ मुझे महाभारत बुक मिला है. तो मैं बोला चलो ख़रीद लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास होता है. फिर वो महाभारत बुक लिया, लेके कैंप में बहुत टाइम मिलता है हमें, बिकॉज सुबह ट्रेनिंग, राइट, एंड ब्रेकफास्ट के बाद में फिर शाम को ट्रेनिंग होता है. फिर आई स्टार्टेड गोइंग टू लाइब्रेरी, बिकॉज पटियाला में वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया. तो ये बुक वहाँ से पढ़ना शुरू किया. सो मेरा व्यू, राइट, एंगल ऑफ सीइंग वर्ल्ड, इट स्टार्टेड डिफर. महाभारत एक ही ऐसा बुक है मेरा विजन में, सेम बुक will give you the different meanings at the different age. That's what I found. Mahabharat, when you are a kid, it looks like a comic. Bhim, sweet खाया, सांपों में गिर गया, पूरा comic के जैसा लगता है. When you are 20, 30, 40, it is strategy. How to face the world, right? How to survive, right? In the same book, in old age, Vanaprasth, means nothing is there. आपने जीता है महाभारत,
लेकिन कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। तो हमेशा मैंने ये समझा कि भाई महाभारत के जैसा युद्ध कभी नहीं लड़ना चाहिए। युद्ध तो जीत लिए, चाचा मर गया, बेटा मर गया, बाप मर गया, व्हाट, right? This is what my takeaway points. Then I started what is my role in Mahabharata, Dronacharya, right? Then I started, as sister told, my angle of seeing Dronacharya के ऊपर भी negative thoughts है, because he has taken away Ekalavya's, yes. So okay, he may be great, even if he's God, right? We have to take only positive points. Why should we take that points? तो मैंने नहीं, हम द्रोणाचार्य को क्यों ये, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग दैट रोल, बिकॉज मैं वो रोल करना है, तो इट्स ए प्रूवन हिस्ट्री। तो मुझे वहाँ एक दो पॉइंट ऐसे मिले। एक पॉइंट ऐसा था, कृष्ण जी बोलते हैं द्रोणाचार्य आप सिर्फ शिक्षक है, गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा का मूल्य है। एक अच्छा गुरु दक्षिणा लेना चाहिए, मूल्य कभी नहीं लेना। द्रोणाचार्य हैज़ डन, दैट्स द रीज़न he has to face it. And then I decided no Moli from my students, Dakshana. So still now I help the athletes. I never ever any share their cash incentives or anything, right? So that's the thing. And there are the two types of, he has shown Mahabharata. One with well equipped with good coach Arjuna, and there are the champions without guru, without equipment too. दैट इज़ एकलव्य। सो हमें दो रास्ते बता दें, उनको भी सपोर्ट करो, इनको भी सपोर्ट करो। तो फिर मैं वो रोल क्या, जो मेरे पास आते हैं उनको भी कोचिंग देता हूँ, कोई दूर रहते हैं उनको गाइडेंस भी देता हूँ, आप ऐसा करो, यहाँ जाइए। सो लाइक दैट ऑल्सो देर आर द बिग चैम्पियन। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग। देन व्हेन इट कम्स टू द रामायण, राइट? सो रामायण में क्या है, वन थिंग आई अंडरस्टूड इज दैट, मैं एक दिन VVS लक्ष्मण पूछ रहे थे व्हाट आर योर फेवरेट गॉड्स। मैंने बोला कृष्ण और राम। उन्होंने बोला हर आदमी को तो ये गॉड होता है, आप, मुझे दो है, बिकॉज कृष्ण इज़ फॉर द स्ट्रैटेजीज, बिकॉज माई प्रोफेशन इज़ दैट। फॉर राम इज स्टैंडिंग ऑन वैल्यूज़। तो वहाँ से मैं स्ट्रैटेजीज लेता हूँ, यहाँ से वैल्यूज़। दैट्स व्हाट माई टेक अवे पॉइंट्स। So he was telling, that's why you are more ahead of anybody in coaching, right? So that's understanding through great leaders and legends. And कभी कभी ना जैसा legends होते हैं, right? Most of the times we don't realize there among us there will be a great people, right? We don't have a time to look around. We always look forward or up. तो मुझे when I started interacting VVS Lakshman and Gopichand, I started feeling, when I am with Gopichand, I will feel myself, I am being with a saint. इतना vibrations रहता है उनमें। फिर मैंने वो realize करना शुरू किए, yes, whenever I am with the Gopi, yes, I am with the saint, right? And whenever I am with the VVS Lakshman, when I trained, 283 when he scored, I was there. When I am with the Lakshman, I feel I am with the God. So is a feeling, this type of things will be there, right? When you are there, atmosphere makes you feel that, but you have to realize what speciality in that child, man. So this is how I started understanding through great leaders and legends. So क्यों legends हुए, क्या है उनके points, right? Then my passion and efforts towards the sport, right? ये ऐसा रहता है, passion means मुझे इतना पैशन था, माई वाइफ नोज, बिकॉज सडनली मैं प्रेजेंट वर्ल्ड से डिसअपियर होता हूँ, मतलब आई गो इन टू द फील इमेजिनेशन ऑफ स्पोर्ट कोचिंग, एंड कोई मेरे को नहीं पहचान सकते, मैं वहीं रहता हूँ लेकिन इस वर्ल्ड में नहीं रहता हूँ। मेरा वाइफ पहचान लेता है, प्लीज़ कम बैक। सो दैट वॉज द पैशन अबाउट माई field, right? Because suddenly I disappear from present world and I go into the coaching, right? और पैशन ऐसा है कि जब मैं, पैशन ऐसा होता है ना, कभी कभी एक बार ऐसा होता है कि मैं एक बार कोचिंग से घर आया था, मैं एक हडल डेमो कर रहा था, डेमो किया, घर पे आया तो मैं कपड़े उतार रहा था, तो वाइफ ने बोला यहाँ से ब्लड निकल रहा है नी पे। सो फिर देखा तो ब्लड निकल रहा था, बिकॉज व्हेन आई वाज डेमोइंग वो हडल नी को लग गया था, कट गया था, मुझे पता ही नहीं है। So that should be your
passion, whatever profession you are doing, right? So then connecting the dots between spirituality and human evolution and sport, right? ये पूरे हमें कनेक्ट करना है, बिकॉज हम कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, कोई कोच हो सकते हैं, राइट? तो हमें भगवती में क्या बोलता, कर्म तो करना ही है ना. सो हाउ यू आर डूइंग दैट कर्मस with attachment, with detachment, that's very very important. Everybody is not in that same profession, so how you get them inside is very very important. That's what I was connecting the dots. So this is a beautiful quote from, everybody knows this, right? So the tough times, acceptance, patience, wait for the right time, nature is supreme, right? तो हम जब भी कैम्प में गए थे, इट वोंट कम इन अर्ली स्टेजेस मैं बहुत पोसेसिवनेस था, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, आई एम गुड कोच. फॉर लेटर टाइम्स आई फाउंड, रिसेंटली जूनियर एशिया का चीफ कोच बन गया था मुझे. हमारा कैंप था 3 हफ्ते, राइट? तो मैंने वो 3 हफ्ते मैंने अपने आप को इंटरनली बहुत सेल्फ टॉक करता था कि भाई दिस इज़ टेम्पररी. पहले भी इंडियन कैंप था, पहले भी चीफ कोचेस थे, वो लोग भी जीते, अभी भी जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे. दैट्स व्हाट इट सेज. तो मेरा क्या है, आई हैव टू प्ले माई रोल. किसी को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है. एवरीबडीज परमात्मा के बच्चे हैं, दे डू वेल, एंड व्हाट बेस्ट रोल आई कैन डू एज अ गेस्ट फॉर 3 weeks, राइट? माई लाइफ इज़ ओनली 3 weeks. ये रोल करके मुझे जाना है. उसके बाद में क्या होता, अभी क्या हो, नो. सो दैट्स हाउ that. So what happened before and what is happening now, what going to happen is always good. So it's all how you think, right? How you take, that makes it. So jab na tough times, because there was a tough times, right? Because I was in the camp 2011. Some of the kids, they have taken the food supplements. It was contaminated with the banned substance. So the team has been banned, and lot of pressure came on coaches also, because nobody will believe whether it's with mistake or intentionally down. So that was a tough time, right? Because I can't talk to anybody. We can't even, ऐसा हो गया था ना, आप मार्केट में चले गए, बम ब्लास्ट हो गया, आपको भी मार लगा, आप कोई पूछ रहा तो मार्केट में किस लिए गए, डू हैव एनी आंसर तो नहीं है ना, मार्केट क्यों गए, तो मार आपको भी लगता है. कभी कभी टफ टाइम्स ऐसे होता है. उस टाइम पे आई डोंट नो दिस स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि बाय द टाइम आई स्टार्टेड लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड रीडिंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स. आई 1.5 year मैं पटियाला में थे, सिर्फ घर पे फ़ोन करता था, घर से ही फ़ोन लेता था, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं. 1.5 year में मैं घर पे एक बार 4 दिन, एक बार 6 दिन आया. आई वॉज देयर जस्ट पटियाला, कंप्लीट 1.5 year में. सो मैंने अपना रूटीन ऐसा बनाया उस टफ टाइम्स में, या तो यू विल बी डूइंग मेडिटेशन एंड रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, और यू विल बी डूइंग फिजिकल वर्क, और यू विल बी स्लीपिंग. दूसरे चीज़ के लिए टाइम नहीं है आपके पास, दूसरे चीज़ के लिए टाइम ही नहीं छोड़े. 1.5 year तो ऐसा ट्रेन हो गया. बस योर मोड स्टार्टेड ट्रैवलिंग इनसाइड, एंड इन टफ टाइम्स में आपको पता चलता है आपके वेल विशर्स कौन है, आपके दुश्मन कौन है. इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू नो एंड यूर सेल्फ आल्सो. उसको ये भगवान दिया हुआ सिचुएशन सोचना चाहिए. टफनेस को हम ये नहीं सोचना यार वही मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं. उस चीज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कोई दोस्त ऐसा रहता है, दोस्त के जैसा दिखता है, लेकिन उस टाइम पे आपको पता चलता है ये दोस्त नहीं है. कोई दोस्त फ़ोन करके ये पता करता है हाउ आई एम, टू टेल व्हाट आई एम डूइंग टू अदर्स, वो फ्रेंड नहीं है. हम तो इतने दिन से समझ रहे थे मेरा फ्रेंड है वो, राइट? सो टफ टाइम में ये पूरा आपको सीखने को मिलता है. और मोर यू ट्रैवल इनसाइड एंड मोर मेडिटेट एंड मोर कनेक्ट विद द गॉड, राइट? सो दिस इज व्हाट. देन एक्सेप्टेंस, राइट? यू हैव टू एक्सेप्ट एवरी चाइल्ड आर दे आर, राइट? हम यहाँ, मैं ये सोचता हूँ, हु आर वी टू चेंज समबडी, यू कैन गाइड देम. कहीं कोई बुक में पढ़ा था कि भाई दे आर ऑल माई चिल्ड्रन, you are no way to force them to do this and that change. तो ये बहुत, इवन अपने बच्चों के साथ भी when you started more owning them,
आप उनको ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर सी। तो कई यहीं सीखे थे ना, बिकॉज चिल्ड्रन आर आपके द्वारा है, हाँ, आपके वजह से नहीं है, आपके द्वारा, थ्रो यू, राइट। से देर आर गॉड चिल्ड्रन। जब अगर ऐसा सोचने शुरू कर दें तो आप लोगों के अपना डोमिनेंस कम होते रहता है बच्चों के ऊपर। सो वी स्टार्टेड प्लेइंग आवर जस्ट रोल, तो मज़ा आता है, यू विल बी वेरी रिलैक्स, राइट। ये एक्सेप्टेंस, मतलब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। तो हार को भी, जैसा जीत को क्या करते हैं हम लोग, जीतने से मैंने ये कर दिया ये कर, जब हार करने से ना इसके वजह से हार गया, नो एक्सेप्टेंस। तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को पूरा यही बताता हूँ, भाई आप जीतते तो बोलते हैं ना मैंने ये किया, हारते को भी वही बोलो मेरे वजह से हार गए। सो वी शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स, दिस इज़ वेरी वेरी, यहाँ पर और एक बात बोल रहा मैं अब हमारे स्टूडेंट से काफ़ी सीखता हूँ मैं आप एक्सेप्टेंस में ना। एक अपने बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन है, उनका नाम है मनु, तो उनका एक लेग नहीं है यहाँ तक, तो वो हाफ स्क्वाट पहन के एयरपोर्ट में जा रहे थे। मैं ना, हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, दूसरे लोग हैं तो फिर उसको कवर करने का कोशिश करते हैं ना, लेग नहीं है। वो बोला है सर आई डोंट हैव लेग, हैव टू एक्सेप्ट इट, मुझे नहीं है नहीं है। So this is a beautiful theory about accepting the things as it is, all right? So this is what acceptance. Then आपको the patience, right? So many times अभी हमारा कोचिंग में ये बोलते हैं 10,000 hours of training spread over 8 to 10 years will take to make international champion. तो इतने घंटे आपको कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कभी इंजरी होता है, कभी सो मेनी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। सो मेरा कैरियर अभी भी यही लोग बोलते हैं, जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है, गीता शंकर, दे केम एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, राइट। 1996 में आए थे, 2012 ओलंपिक्स तक किए हैं, 3 ओलंपिक्स, 3 एशियन गेम्स। ये हमारे कोचिंग फील्ड में भी यही बोलते हैं, टू कोच एनीबडी 1 or 2 years is any fool can do, but training 8 to 10 years you need a lot of patience, lot of training methods, expectation। कोई भी चीज़ में भी, दीदी हो, यहाँ पर भी आओ, अगर आप लोग यहाँ अगर ईयर राउंड आते हैं, इट्स नॉट ईजी थिंग। सो ये चीज़ इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव पेशेंस एंड सो वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज आप लोग मेहनत करते रहते हैं, ओलंपिक्स के लिए कड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, बट यू हैव टू वेट फॉर ए टाइम। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम इंडियन टीम को घर से दूर ईयर्स टुगेदर आई टू ट्रेन, लास्ट में दूसरे कोच को भेज देते थे, मैं घर आता था तो घर में बोलते थे आपने ओलंपिक्स नहीं गए, ये नहीं गए, नहीं कोई नहीं। तो फिर जब दूती चंद आया, दूती चंद को जब ट्रेनिंग करना शुरू किया, ना तो एशियन गेम्स छूटा मेरे से, ना तो ओलंपिक्स छूटा, मीन इट वॉज ए टाइम। सो आपने आपके टाइम के लिए वेट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट माय प्रोफेशन taught me. So you have to wait for a time, because after so many years children will start winning. तो ये and nature is always supreme, right? Because nature को पता है आपको कब क्या करना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं स्पोर्ट्स स्कूल में काम कर रहा था एज ए कोच, तो अच्छा रिजल्ट दे रहा था, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं डिप्यूटेशन पे था स्पोर्ट्स स्कूल में, तो वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टर को और या स्टेट अथॉरिटीज़ को डिफरेंसेस आ गए, तो मुझे बेंगलुरु सरेंडर कर दिए। सो आई वॉज हैविंग ए गुड रिजल्ट्स इन स्पोर्ट्स स्कूल, आई वॉज लिटरली क्राइड, भाई मुझे क्यों डिस्टर्ब करा जा रहा है। फिर मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर ऑफिसर नहीं था, तो दसरा हॉलीडेज में गए थे, तो 4-5 दिन के बाद में आए। फिर वो बोले कि भाई तुमको इंडियन हॉकी टीम को एक लेटर आया था, कोई कोच बोला यहाँ पर रमेश है बेंगलुरु में, इनको आप इंडियन मेन हॉकी के साथ आप फिटनेस यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई गॉट ए इंडियन मेन हॉकी टीम फिटनेस कोच इन 99, and so that gave me a big break. I went to 2000 Sydney Olympics with Indian men hockey team as a fitness coach. That time they were all legends, Dhanraj Pillai, Mukesh, Ramandeep, Riaz, बलजीत सिंह ढिल्ला, बहुत काफ़ी लोग। तो
यहाँ मैं वाई आई एम टेलिंग नेचर इज़ सुप्रीम. अगर मैं यहाँ रहता स्पोर्ट्स स्कूल में, मेरा लाइफ वहीं एंड होता. तो नेचर वांट्स मी टू सर्व फॉर द नेशन. तो कभी कभी सिचुएशन धक्के से भी होता है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट. फिर वो इंसिडेंट से मैं अभी तक जो भी होता है अपने अच्छे के लिए निकल जाता हूँ. फिर वहाँ से वीवीएस लक्ष्मण, वो मुकेश और वीवीएस लक्ष्मण एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने मुकेश को बोला, यार इंडियन हॉकी टीम इज़ वेरी फिट, मुझे फिटनेस चाहिए. बोला वो रमेश जी हैं, हैदराबाद में रहते हैं. सो दैट्स हाउ लक्ष्मण हैज़ कम. फिर लक्ष्मण जी के साथ हमने 3 मंथ्स काम किया, वो जाके 283 स्कोर किए. फिर उनसे फिर सानिया मिर्ज़ा, फिर उनके साथ गोपी चंद. मतलब व्हाट आई मीन टू से, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, इज नेचर इज़ सुप्रीम. वो अपने आप आपको अपॉर्चुनिटीज देता है. जस्ट डू वॉट एवर इन योर हैंड्स, राइट, विद डेडिकेशन वे, राइट. चलो नेक्स्ट का. सो यहाँ पर आपको ये तो सभी को पता है, कर्म करो, राइट, देन राइट, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस हियर. सेल्फलेस वर्क, बिकॉज आई लव कोचिंग मीन्स, क्यों? क्योंकि कोचिंग इज़ वन प्रोफेशन वेयर यू हैव टू ऑलवेज हैप्पी बाई सीइंग समबडीज अचीवमेंट्स, है ना, बिकॉज नॉट दे आर नॉट योर ओन किड्स. सो दैट इज़ व्हाट्स द सेल्फलेस. आपको पता है ये चैम्पियन बनेगा, लाइफ में सेटल हो जाएगा, नाम फेम आ जाएगा, फिर एक दिन चला जाएगा, फिर भी आप कर रहे हैं. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई एम राइट. ही इज़ नॉट गोइंग टू विथ यू. सो दैट इज़ व्हाट आई लव दिस प्रोफेशन, क्योंकि ये ऐसी प्रोफेशन है, यू हैव टू बी हैप्पी बाय seeing somebody's achievements, right? Then always athletes are always fast because it's right from beginning. मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था चिकमगलूर में, तो 3 साल के बाद में मुझे हैदराबाद आना पड़ा. तो यहाँ पर एक छोटा सा एथलेट इज़ फर्स्ट. वाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो वरंगल में आई वॉज वर्किंग लाइक ए फिजिकल एजुकेशन टीचर. एक माधवी स्टूडेंट था. सो शी वॉज 13 years old. शी बिकेम ए स्टेट मेडलिस्ट एंड साउथ जोन मेडल. फिर मुझे पोस्ट मिल गया था चिकमगलूर जाने का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में. फिर दैट गर्ल टोल्ड सर आई वांटेड टू कम विथ यू. तो मैंने उसको बोला, यार आप नेशनल में गोल्ड करो, मैं आपको साथ में लेके जाऊँगा. मुझे पता था वो नेशनल में 515 530 करने से मेडल आता. दैट टाइम शी वॉज डूइंग ओनली 490 475. वो 515 530 नहीं करेगा, हमारा पीछा छूट जाएगा. तो उसने गया दिल्ली में 530 करके गोल्ड करके वहाँ से फ़ोन किया, सर मुझे गोल्ड लिया, आपको मेरे को लेके जाना है. तो देन फिर चिकमगलूर उनके फादर आए थे. मैंने बोला ओके समर कैंप है, हम लेके जाएंगे, वी विल सी दैट. तो हम वहाँ लेके गए. अनफॉर्चुनेटली दैट गर्ल लव्स हर फादर वेरी मच. तो देयर वाज अ बेटिंग बिटवीन हर फादर एंड हर सेल्फ. उन्हें बोला अगर मैं अपने आप आ जाऊँगी तो आपको मैं 1000 रुपीज़ दूँगी. अगर डैडी को बोला अगर आप मेरे से नहीं रुक जा सकते, आप बुलाते हो तो फिर मुझे आप देना है. सो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद 2 weeks के अंदर उनके फादर को हार्ट अटैक आया, ही पास्ट अवे. सो आई वॉज ए यंग कोच. बाय द टाइम चिकमगलूर शी रीच्ड होम, शी कुड नॉट सी हर फादर्स बॉडी. तो फिर मैंने बोला इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प हर इन ट्रेनिंग. मतलब वाई आई एम टेलिंग फर्स्ट, वहाँ से जब चिकमगलूर से मुझे नया शादी हुआ था हैदराबाद में आए, तो हमने 2 एथलीट्स को अपने घर में रखना पड़ा. सो दैट इज़ व्हाट एट यंग एज, न्यूली मैरिड एंड कीपिंग 2 young girls, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम ग्रेटफुल टू माई वाइफ एंड माई इन-लॉज. वो लोग, अगर उस टाइम पे मैं ऐसा पैशनेट था, इवन आई एम रेडी टू लीव माई फैमिली फॉर कोचिंग सेक, क्योंकि एक नशा होता है ना. बट आई एम सो फॉर्चुनेट दैट my wife and my in-laws, they never said no. So they went on to become internationals. जब से अभी तक मुझे मेरे वाइफ पे कभी गुस्सा नहीं आता है कुछ भी, बिकॉज दैट इंस्टेंट इज, नहीं तो थोड़ा भी उधर इधर हो जाता तो. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एथलेट्स इज ऑलवेज फर्स्ट, राइट. देन रिजल्ट्स टेक, इट्स ए लॉन्ग टाइम. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आता है आपको. ओके, देन एथलीट्स मस्ट पुट बेस्ट एफर्ट्स. यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एथलीट को चेंज करना उतना आसान नहीं है, राइट. यू नीड, अभी जैसे जितने अभी बाबा है ये लोग, हम अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम कितना मेहनत करके उनको कोचिंग देते हैं, लेकिन वो लोग भी तो परफॉर्म करना है, राइट. दे हैव टू चेंज.
दैट इज़ वॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब रिसेंटली एक दंडी ज्योतिका, शी क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स. उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला है, आई जूनियर्स में तो मैंने मेडल लिया, बट सीनियर के लिए मैं रमेश सर के पास गया. रमेश सर मेक्स अस मोर इंडिपेंडेंट एंड मोटिवेट योर सेल्फ डू. तो आप कभी भी किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं, यू हैव टू मेक देम स्टैंड देयर ऑन ओन फीट रादर देन मेकिंग देम टू डिपेंड ऑन यू. मेनी पीपल दे डू इट. सो दिस इज़ वॉट वेरी, अगर यहाँ आ रहे हैं, अगर हम में चेंज नहीं आ रहा है तो फिर देयर इज नो फन इन इट. सो दैट इज़ वॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो put efforts that athletes, okay, then daily training, right. तो 29 years हो गया, right. So आप हमारे लिए मॉर्निंग इवनिंग एवरी डे पेन्स एवरी, हमारे लिए क्या है, दसरा, मैंने बोलता हूँ हमारा दसरा दीपावली, दसरा इज़ ए गुड ट्रेनिंग, दीपावली इज़ ए कॉम्पिटिशन. हम तो रेस्ट नहीं लेते हैं, दसरा हो या दीपावली हो. दैट इज़ व्हाट आई एम हियर वांटेड टू शेयर. माय वन मोर कोट इज़ दैट डू व्हाट यू नो, इट विल मेक यू डू व्हाट यू हैव टू डू. दैट्स व्हाट हैपन इन द मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल में. मैं धीरे धीरे इतना ट्रैवल करना शुरू किया, ऐसा स्टेज आ गया था मुझे वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन में, मतलब आई स्टार्टेड कमांडिंग, लाइक मुझे आप लोग भी रियलाइज़ कर सकते हैं, जब यू आर कम्प्लीटली, जब मेरा ओलंपिक्स होता है तो वो सिडनी ओलंपिक से पहले 3 months पहले मैंने मतलब नीचे सो जाता था, किसी से बात नहीं, इवन नो नेगेटिव टॉक. मैं इसलिए बात नहीं करता था, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया तो कोई हम नेगेटिव बोल दिए, वो उसका भी इफेक्ट होता. मतलब मैक्सिमम मैं एकांत रहता था, और जब बाहर आता तो सबसे अच्छा रहने की कोशिश करता था, एंड बहुत कम बात करता था. ज़्यादा बात करना, ज़्यादा प्रेयर्स करना, और ओनली टू ऐसा मैंने 3 months करके देखा. तो जब सिडनी ओलंपिक्स में फर्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, तो मुझे ऐसा सीन आ गया था, फर्स्ट 30 seconds के अंदर पास मुकेश के पास आ रहा है, राइट. मुकेश को गोल मारना है. तो मैं सोचा यार ऐसा सीन मतलब क्लियरली दिख रहा था मुझे, जस्ट वार्म अप किए, हम लोग जाना है. तो चलो भाई, मुकेश को बुलाया, मुकेश बी अवेयर, 30 seconds के अंदर तुम्हें पास आएगा गोल मारने. अरे अन्ना आप ऐसा बोल रहे हैं, हाँ देखो. मैं जाके हमारा सिडनी ओलंपिक्स में फर्स्ट 30 seconds के अंदर उनको पास आया गोल. इट इज़ ए फास्टेस्ट गोल इन द वर्ल्ड. सो व्हाट आई मीन टू से, जब आप लोग अपने आप को कंट्रोल करके सबसे अवॉइड करते हैं, हम लोग भी सेंट बन सकते हैं. मैं जब रियलाइज़ किया, इट्स नॉट वही लोग बनने, नहीं, उसमें क्या क्या है, छोटी छोटी चीज़ हम, आई रियलाइज्ड हम भी बन सकते हैं. दैट्स व्हाट, उतना पावर आएगा. उसके बाद में भी 2-3 बार जब भी बड़ा बड़ा कंपटीशन होता है तो आई ट्रैवल माई इनसाइड. मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लोन. इवन नॉट मी, इवन गोपी चंद, BVS लक्ष्य, हम बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते हैं. लास्ट 3 months कंप्लीट खो जाते हैं अपने आप में, बिकॉज यू हैव टू फेस बिग वर्ल्ड. ओलंपिक्स मतलब देर इज़ नो चांस लेफ्ट, राइट. फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली यू हैव टू बी मैचिंग विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये बहुत हमने रियलाइज़ किया, और डर नहीं लगता जब आप स्पिरिचुअली मेडिटेशन रहते ना, बिल्कुल ही डर नहीं लगता. भाई कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए. आपने देखे होंगे ओलंपिक चैंपियंस में एक चांस रहता है उसके लिए, उसके फेस में देखो, मैं करूँगा, राइट. अगर आप रहते तो एक बार नॉर्मल टाइम में करना अलग है, उस टाइम में करना अलग है, राइट. तो इसका कभी का प्रेशर कैसा होता है, मैं अभी एक फिल्म में देख रहा था, एक रजनीकांत का फिल्म रहता है, ऐसे डालता है वो सिगरेट, तो खाली जितने बार खाली टाइम डालता है उसका बेटिंग होता है, भाई 10 टाइम डालना है, अगर एक बार भी छुटा तो तेरा उंगली काट लूँगा, नहीं तो 10,000. तो 7 टाइम 8 टाइम वो डराते रहता, अगर नहीं करने से काट. 10th वाला नहीं डालता, छोड़ो यार. सो दैट्स व्हाट when in a time you wanted to do and something else is put on your neck, it's very tough. इसलिए अभी जूनियर एशिया में हमने बच्चों को साइकोलॉजी में ये बोला था कि भाई आप कंपटीशन तक ही सोचना है. कंपटीशन के बाद में आप हार रहे, जीतने से क्या होता, हारने से, नो, दैट विल माउंट प्रेशर ऑन यू. सो हम भी ऐसा ही करना है, प्रेयर हो, स्पिरिचुअल और मेडिटेशन, वहीं तक उसके बाद का सोचना शुरू किए, देन यू आर अंडर, सो प्रेशर होता है. ठीक है. सो लिटिल बाय लिटिल थ्रू पेशेंस एंड रिपीटेड एफर्ट्स यू कैन कंट्रोल योर माइंड, राइट. तो
ये मेडिटेशन में हो स्पिरिचुअल एक दिन भी हमें छोड़ना नहीं है। अभी भी मैं 3:30 4 o'clock उठता हूँ, फिर मेडिटेशन, प्रेयर, विजुअलाइजेशन, फिर ट्रेनिंग के बारे में पढ़ के तभी मैं ग्राउंड जाता हूँ, और मॉर्निंग एंड इवनिंग चीज़ को रेगुलर हो गया, राइट। सो आप जब when you start doing that you will come to know what is in depth every day कितना भी छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़ को। हम जब एक अच्छा चीज़ है यू स्टार्ट डूइंग कोई भी चीज़, तो दैट विल मेक यू वेरी वेरी, मतलब हमारे उसमें भी ये रहते हैं स्टेजेस, टीचर, ट्रेनर, कोच, गुरु। अब ये स्टेजेस पूरा पार के जब गुरु स्टेज में जाते हैं ना, फ्लो आ जाता है आपको। फ्लो मतलब पढ़ने का कोई मतलब देख के बोल सकते भाई ये यू डू दिस, वो फ्लो आना है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आपको ऐसा लिटिल बाय लिटिल थ्रो पेशेंस एंड रिपीटेड थिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना आपको, सी मेडिटेशन स्टार्टिंग में मुझे 5 मिनट बैठा नहीं जाता था, 10 मिनट्स मुश्किल होता था। अभी मुझे 45-50 मिनट्स कोई दिक्कत नहीं आता, मज़ा आता है मुझे। कहा अच्छा पहले तो सुबह शाम, अभी कभी भी, अब आफ्टरनून भी मुझे टाइम मिल जाता हो ना, बच्चे रूम में जाके चेयर डाल के आराम से मेडिटेशन, राइट। सो ये कैसे आता है, व्हेन वट एवर यू प्रैक्टिस, कोई भी चीज़, गलत चीज़ हो या अच्छा चीज़ हो, यू विल गेट ए मास्टरी इन दैट। सो लेट अस डू, इट्स अ गुड थिंग। हमारे बच्चे भी पहले हाफ एन आवर में थक जाते हैं, 1 hour 2 hours, अभी 3 hours भी ट्रेनिंग करते हैं। तो एवरीथिंग इज लाइट सच, सो दैट इज व्हाट द गीता सेज, राइट। Dharma is so called because it is a sustains and support society. The people of country are held together and sustained by dharma. Okay, तो ये क्लैरिटी ऑन धर्म में पंजाब में था, तो गुरु गोविंद जी औरंगजेब के अगेंस्ट लड़े थे, राइट। ही वॉज हैविंग वेरी स्मॉल आर्मी एंड फाइटिंग विथ ए मल्टी। तो हमारे जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक के सपोर्ट से जो भी लड़ाई लड़ा गया, it was long lasting, and though they lost but they remained in the history as legends. तो गुरु गोविंद जी से मैंने ये सीखा यार, तो माई फाइट इज़ इन कोचिंग, सो वॉट एवर आई शुड डू लाइक धर्मा, राइट। हमें विनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एट एनी कास्ट। हमारे लाइफ में भी ये बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा समझते हैं जीतना एट एनी कास्ट, नो, विनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एट एनी कास्ट। सो दैट्स व्हाट यू शुड हैव ए क्लैरिटी इन योर प्रोफेशन एंड योर डूइंग्स, राइट, देन यू नेवर गोइंग टू गेट हर्ट। एंड डेली कर्मा अलाइन टू धर्मा, मतलब आपको ऐसा नहीं कि भाई ये काम करने से अभी हमको डेली, मतलब डेली तो करना ही करना है काम, ऐसा नहीं कि भाई आप बैठ नहीं सकते, राइट। यू हैव टू डू द कर्मास, राइट। एंड वो कर्मा कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को डांटता हूँ, राइट, वी हैव टू डू पनिशमेंट, बट आई नेवर सी दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कैरियर्स, राइट। आई एम हियर टू प्ले माई कोच रोल। सो उस टाइम पे आपको ये समझना भाई मैंने करता हूँ, मतलब आई बीन जस्ट डूइंग माई रोल, दैट्स ऑल। मैं मेरे वजह से ही हो रहा है, दैट शुड नॉट बी, राइट। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अलाइन ऑलवेज एवरी डेज, एनी वर्क एंड प्रोफेशनल वर्क, पूरा धर्मा कर्मा से अपने अलाइन करते जाओ, तो फिर अपने आप को पता चलते रहता है, यस यू आर इन ए राइट लाइन्स, राइट। एंड प्योरिटी इन इंटेंशंस एंड एफर्ट्स, राइट। मैंने आपको ये बताया था कि जैसा हॉकी में हुआ था मेरा प्योरिटी, ठीक है। जब आप प्योर भावना से करते हैं ना, आपको पता चल जाता रहता रिजल्ट्स, आपको सक्सेस होता है या नहीं आप पहले से पता चल जाता रहता है। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड बाय स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन। मुझे मतलब सिग्नल्स पता चलते रहता है, यस दिस बॉय इज़ गोइंग टू डू दिस। कभी कभी मेरे ड्रीम्स में आ जाता है, बिकॉज वंस इट हैपेंड शंकर एंड वन गर्ल वाज देयर, दैट माधवी। तो मुझे ड्रीम में आया था, शी वॉज डूइंग 50.56 और लॉन्ग जंप 5.82 एंड शी इज़ गोइंग टू गेट ए मेडल। तो मैंने उनको बोल दिया, वो इतना ही किया। एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब VVS लक्ष्मण 283 के थे, बहुत मेहनत की हमने, मतलब बहुत वो मैच कंपटीशन जाने से पहले मुझे पूछे थे, सर आपको क्या लग रहा है? तो मैंने पता नहीं, मुझे मतलब बिकॉज आई ऑल्सो इन्वॉल्व, मुझे ऐसा फीलिंग है, फ्लो में मैं बोल दिया, इस मैच में इंडियंस कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन आप
अकेले को करना पड़ेगा. दिस इज वॉट माई वर्डिंग्स. यू हैव सीन दैट मैच, एवरीबडी इज गेटिंग आउट, ही स्टूड एंड प्लेड 2 innings. सो वहाँ से मुझे फ़ोन किया, तो मुझे बोले कैसा लग रहा है, तो बोला सर अभी क्रिकेट बॉल के जैसा नहीं, वॉलीबॉल के जैसा लग रहा है, इतना बड़ा बॉल लग रहा है वो. सो आई एम टेलिंग दिस ऑल स्पिरिचुअल, वेयर इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल, राइट, स्पिरिचुअल. आने के बाद में बोले कैसा लगा आपको, मैं बोला सर ही हैज़ मेनी टाइम्स इन एंड आउट, मतलब वो एग्जॉस्ट हो गए थे. वो उस मैच से पहले मैंने को बोले सर आप और शिरडी साई बाबा को बहुत मानते हैं, उनका और आप जो बोले थे ना, उस 2 चीज़ के ऊपर मैं भरोसा रख के गया. अगर मैं इस यहाँ नहीं करता तो भाई क्रिकेट छोड़ने वाले थे. सो दैट्स हाउ द स्पिरिचुअल प्लेज द रोल, राइट. ओके. देन रामायण, राइट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज जब मैं बोला था ना डोप का प्रॉब्लम हुआ था, कभी कभी टीम के साथ में जो भेज लेने थे, फिर उस टाइम पे रामायण जब पढ़ते हैं तो आई स्टार्टेड लुकिंग बैक. देखो राम जी जब बचपन में थे वो उनके गुरु लेके गए शिक्षा के लिए, जब शिक्षा से वापस आए उनको किंग बनना था, नेक्स्ट डे दे हैज़ टू गो फॉर वनवास, फिर वनवास में चले गए. फिर जब पूरा वनवास करके ये हो गया, फिर वनवास से आए, फिर वाइफ को छोड़ना पड़ा, फिर जब वाइफ से मिलना है तो फिर लाइफ ही ख़त्म हो गई. इसलिए उनको आज हम लोग भगवान मान रहे हैं. यार हमको थोड़ा बहुत कष्ट आते हैं तो फिर हमें नाम तो वैसा चाहिए, लेकिन थोड़ा भी कष्ट आता तो वी वांटेड टू पुल बैक. देन आई सेड नो, अगर आपको कृष्ण भी बनना है, कृष्ण भी तो देखिए वो जेल में पैदा होते हैं दूसरी जगह, और हर मिनट उनको जान का खतरा है, राइट. व्हेन गॉड्स हैव फेस दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर यू व्हेन यू प्रे फॉर देम, व्हाट यू आर गेटिंग, राइट. हम किसको भी चाहते हैं, किसी को प्रे करते हैं तो उनके क्वालिटीज़ भी अपनाना है आप लोगों को. ऐसा नहीं जस्ट प्रे एंड कम, नो. मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी को भी ऑब्जर्व करूँ, उसमें से गुड क्वालिटीज़ लेता हूँ. गुरु जी हो, उसको मैं ट्राई टू अप्लाई वॉट एवर आई फील गुड. इवन महात्मा गांधी भी यही बोलते हैं. वो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, कोई भी अच्छा चीज़ लगता है मैं अपनाने का कोशिश करता हूँ. सो that's what I learned from the Ramayana. And one more beautiful point I learned is from Sita ji. When she's been with Ravan's place, right, there was a lot of pressures, lot of temptation, but she never left her dharma. तो हमें कहीं भी कितने भी दिक्कत आते हैं तो वहाँ अपने आप को स्टैंड लेना ही पड़ेगा. कभी हमें दूती चंद को हमने ट्रेनिंग करते को, बिकॉज देर वॉज ए जेंडर इशू आया था, तो पूरे मुझे भी ह्यूमिलेट कर रहे थे, तुम ऐसे लड़कियों को ट्रेनिंग करते हैं. हेलो, मैंने स्टैंड लिया, बिकॉज शी इज़ ए ह्यूमन बीइंग, राइट. एज ह्यूमन बीइंग्स एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्ले. आपने ऐसा रूल्स लगा के किसी को खेलने से मना कर रहे हैं, ये गलत है. सो दैट्स आई टुक स्टैंड. सो दैट्स व्हाट समटाइम्स आपके प्रोफेशन में यू हैव टू, पीपल मे आस्क यू टू कॉम्प्रोमाइज और मे, but you have to find out the way where you are right, where you have to stand, right. So that's what my take away point, because मैंने जब कैंप्स में रहता था वो तेलुगु फिल्म देखा था रामराज्यम, तो सीता दी को जब भेज देते हैं तो कभी वो किसी को ब्लेम नहीं करता है, चुपचाप. एंड शी नेवर loses even inch of love and respect for her husband, राइट. एंड उनके चिल्ड्रन को इतना अच्छा ग्रो करते हैं, नो फैसिलिटीज़, बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, राइट, बिकॉज शी हैज़ टू बी इन लाइक ए, तो फिर भी अपने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा. दैट्स वाई टुडे वी प्रे हर. सो जब भी हम दिक्कत में आते हैं तो प्लीज़ स्टे देयर एंड रिमाइंड देयर डिफिकल्टीज. इट विल गिव्स यू अ लॉट ऑफ. वो फिल्म देखता था मैं हमेशा कैम्प में, वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन होता था, यार इतना टफ टाइम में भी अपने कुछ नहीं छोड़ा, किसी को ब्लेम नहीं किया, राइट. अगेन दे वन. तो दिस इज़ व्हाट आई अप्लाइड, बिकॉज कभी भी कैम्प में घर से दूर ये. सो एंड मेरा और एक टेक अवे पॉइंट यहाँ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द थाउजेंड्स इज नॉट एज ए पावरफुल एज द स्ट्रेंथ ऑफ वन विथ फेथ. ये जो भी हम आपके फील्ड में जब स्ट्रांग होते हैं ना, तो यू स्टार्ट यूर सेल्फ फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग. ये 2 चीज़ अपने आप आते हैं. अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है, मीन्स यू आर नॉट रीच दैट स्टेज. आपको आपके सबॉर्डिनेट्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है या आपके अपोनेंट्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो समझ जाओ भाई आप
पावरफुल नहीं है उस जगह में। अगर पावरफुल है तो मज़ा आता। अभी इंडियन कैम्प में था तो कोई भी कोच कुछ गलती करता था, पहले तो हम गुस्सा करते थे, अभी नहीं हंस रहा था मैं, रमेश जी आपको गुस्सा नहीं आता मुझे, बिकॉज आई रीच्ड माई सेल्फ, राइट, मैंने इमर्ज किया, राइट, इट्स डेवलप, राइट, बिकॉज हमारे फील्ड में ऐसा होता है, बिकॉज टू साइड ग्रो, एक आउटसाइड एक इनसाइड, लाइक ए ट्री, राइट, व्हेन यू ग्रोइंग अप, तो आउटसाइड ग्रो ट्री के लिए ईजी है ना, नथिंग हर्डल्स। जब इनसाइड ग्रो करना है तो यू हैव ए हील्स, हार्ड सरफेस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बोथ द साइड्स यू स्टार्ट ग्रोइंग, एक साइड जाने से फिर आपको दिक्कत, मोर यू गो ट्रैवल इनसाइड, यू विल कम टू नो व्हाट यू आर, व्हाट इज़ योर पर्पस बीइंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। हमें अगर इंटरनल ट्रैवल नहीं करें तो आपको क्या मज़ा देता है, व्हाट फॉर योर, बिकॉज मैं ऑलवेज टॉक, मैं ऑलवेज से दैट some may born poor, some may born rich, but nobody borns bad, and God sends every child on this earth with some or other talent। आप देख लीजिए, बगैर टैलेंट का कोई बच्चा बच्ची ये ज़मीन पे नहीं आते। तो हमारा ये है कि भाई खुद को पहचानना, बिकॉज व्हेन आई वाज चाइल्ड, बिकॉज माय फादर वाज वर्किंग इन ए डिफरेंट सिटी, तो रात में आए थे, वो दिसंबर ठंडी था, तो मेरे मम्मी पूछे, वो स्वेटर डाल के गए थे, आते कुछ शेड पे आए, तो मेरे मम्मी पूछा भाई स्वेटर किधर है, वो बोला रेलवे स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी काँप रहा था, उसको मैंने वो स्वेटर दे दिया। तो आई वॉज समवेयर एल्स, मे बी 12 years चाइल्ड, राइट, रियली वो स्ट्रक इन माई माइंड। तो आप लोगों को सब ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे हमें बोलने से ज़्यादा हमारे काम से सीखते हैं। प्लीज़ इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी डिसिप्लिन्ड और एवरीथिंग, वी हैव टू डू। इसलिए हमने ये भी इसमें यहाँ पर भी कोच का द्रोणाचार्य में मिस हुआ था। मेरे एक बहादुर सिंह थे चीफ कोच, उन्होंने जब चीफ कोच बने मेरे को बोले, यार पहले वो दारू पीते थे, कार्ड्स खेलते थे, जब वो कोच बने दारू उसी टाइम बंद, कार्ड्स बंद, सब कुछ, बिकॉज वी शुड बी ए रोल मॉडल। तो मैं हमारे बच्चों को भी जब बोलता हूँ ना, सो आई टेल, मेरा ये डर है कि अब मैं बच्चों को, मेरा इतना डर होता है, कभी कोई दूसरे लोग भी पार्टी में बुलाते हैं तो बार शॉप में नहीं जाता मैं उनके साथ, खाली बैठने के लिए भी नहीं जाता है, बिकॉज अगर मेरा एक एथलीट सेलिब्रिटी है, वो बोलेगा मेरा कोच ये है, तो दूसरा उसको बोलेगा ना क्या तुम्हारा कोच है, उसको तो मैं बार शॉप में देखा, राइट। सो दिस मच केयर वी हैव टू टेक, बिकॉज फॉर देम सेक वी हैव टू मेक आवर सेल्फ मोर केयरफुल, मोर कंटेंट, राइट। सो दिस इज व्हाट other thing, and here are the things, right, this is Srinivas, right, recently उसने सिल्वर मेडल लिया फेडरेशन एंड यूथ एशिया में मेडलिस्ट है। वो इतना टफ टाइम में था, कोरोना में, इस फादर हैज़ गॉट ए पैरालिसिस, उसको लेबर काम करना पड़ा, फिर भी हमने मोटिवेट करके उनको स्पोर्ट करवाए तो चैम्पियन बनते हैं। वो है गीता, राइट, दैट गर्ल केम एट द एज ऑफ 13 years, 1996, and she went on to play 3 Olympics, 3 Asian Games and Arjuna Award, right। वो तो जब अर्जुना अवार्ड द्रोणाचार्य देते हैं तो उस दिन पहले मोदी जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ वी हैव ए स्नैक्स पार्टी होता है 1 hour, वहाँ पर मीडिया वूडिया कुछ नहीं होता है। सो ये अवार्ड का फीलिंग, मैंने कभी भी आप लोगों को कुछ अवार्ड मिलता है, इट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल। तो जब द्रोणाचार्य मिला तो मुझे वो अशोका हॉल में ही देते हैं, आप कई लोगों को पता है, मुझे भी पता नहीं था अशोका हॉल में ही क्यों देते हैं अवार्ड्स। अशोका हॉल में इसलिए देते हैं, जब अंग्रेज़ हमारे देश को फ्रीडम दिए थे उस स्टेप से उतर के गए, सो उस स्टेप्स पे आपको चढ़ के अंदर जाके अवार्ड लेना है, मतलब यू आप एक स्वतंत्र भारत में द इंडियन गवर्नमेंट इज़ रिकॉग्नाइजिंग यू आर ए कोच, सो दैट इज़ फीलिंग। तो मुझे तब पता चला, तो देन वहाँ से फिर कभी पहले तो भाई मैं भी तो यंग था, बगैर हेलमेट पे भी चले जाता था कब, लेकिन जब द्रोणाचार्य बना आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रूल्स, राइट, बगैर हेलमेट के ना जाएं, कहीं ओवर लाइन करें ना ओवर, बिकॉज आई एम द्रोणाचार्य, राइट, बिकॉज एनीबडी कैन टेल अरे द्रोणाचार्य ऐसा किए। तो आपको जब भी अवार्ड आता है इट हैज़ टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, आपने रिस्पॉन्सिबल फील करना। एन्जॉयमेंट अलग है, प्रोटोकॉल रहता है वो अलग बात है, उसके साथ आपका
रिस्पॉन्सिव हमेशा आप अपने, बिकॉज इट्स हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन कोचिंग। तो मैं अभी इंडिया के, पहले कोई कहाँ से भी फ़ोन करते यार, ठीक है यार ऐसा, अभी रात को कोई 11-12 बजे भी फ़ोन करता है कहीं से भी, सर मेरे को कोचिंग, उसको भी मैं आराम से आंसर देना पड़ता है, बिकॉज इट्स अवार्ड। गवर्नमेंट आपको, हिंदुस्तान का गवर्नमेंट को आपको रिकग्नाइज किया है। तो ऐसा कभी भी अपने प्रोफेशन में प्लीज़, कभी भी कोई भी सिचुएशन में रहे तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड देम। अगर आप नहीं कर सकते तो करने का जगह बताइए। हम मेनी टाइम्स वी मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू डू इट, बट यू कैन शो देम ए वे। एक थोड़ा सा पेशेंस होता है। सो दैट्स व्हाट। एंड जीवांजी दीप्ति, इनका छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ। शी इज़ उनका IQ लेवल इज़ वेरी लिमिटेड, राइट। सो उनका पेरेंट्स, एक बार मैं खम्मम में उनको कंपटीशन करते हुए देखा। उनके पेरेंट्स को बोला, वरंगल में रहते, उनको हैदराबाद भेजो, हम ट्रेनिंग करवाते हैं। उनके मदर फादर डेली वेज काम करते हैं। वो बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम हैदराबाद आके छोड़ नहीं सकते उसको। तो हमने बोला ठीक है, उसको बस चढ़ा दो। फिर कंडक्टर को बोला उसका नंबर दे दो, उसको मिस कॉल किया। फिर कंडक्टर को हम ट्रेस किए, वरंगल से यहाँ आने से कहाँ पहुँचे, गनपुर, फिर जनगांव, फिर आलेर। फिर हमारे एक बंदे को बस स्टैंड भेजे, उनको लेके आके हैदराबाद में ट्रेनिंग करवाए। एंड उनके फादर मदर बोले मेरे को, सर एक बार बिल्डिंग से नीचे गिर गया। शी वॉज नॉट टेलिंग एनीथिंग। इट्स नॉट दैट शी वॉज नॉट फीलिंग पेन, शी डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस द पेन। एंड किसी का भी शॉर्ट कमिंग को स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसा यूज़ करना मैं अब बताता हूँ। ये हम लोग वीकनेस समझते हैं ना, इस वीकनेस को ही मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे यूज़ किया। क्योंकि ट्रेनिंग में हमारे दूसरे बच्चे अगर 300 मीटर्स 3-5 बार करे, वो बोलेंगे सर दर्द हो रहा है मैं रोक दूंगा। ये बच्चे को तो दर्द का पता ही नहीं है, मेरे को रोकना पड़ेगा। सी हाउ यू हैव टू यूज़ योर ओन किड्स और यूर सेल्फ, वीकनेस इज इनटू स्ट्रॉन्ग। फिर अभी नाउ शी भी एशियन गेम्स में इसने रिकॉर्ड भी किया, गोल्ड मेडल लिया। और उनको 30 लाख रुपीस अभी नेशनल इंडियन गवर्नमेंट में दिया। तो उनके माँ बाप को मैंने फ़ोन किया, सर वो फिक्स कर दो बोले, बिकॉज अगर आप किसी को हेल्प करना है तो ये भी देखिए। तो मुझे पता था एक डेली वेजेस से अगर इसको फिक्स करेंगे, इनका रेंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर वो लोग भी ईजी। मैं बोला नहीं, आई एम गिविंग 2 days टाइम, आप लोग क्या कर सकते ये बोलो, देन आई विल हेल्प आउट ऑफ दैट मनी, सम मनी। तो वो 2 दिन के बाद बोले, फ़ोन करे, सर हमने पहले हमें दिक्कत था, एक हाफ एकड़ लैंड हमने बेच दिया था 3 लाख में। दैट हाफ एकड़ लैंड दे वांटेड टू सेल अगेन, दे आर 9 lakhs दे आर डिमिंग, बोर है। तो मैं बोला हाउ मच यू कैन अर्न, सो बोले 1.5 lakh पर ईयर, ठीक है। फिर उनको हम हैदराबाद बुला के गोपीचंद द्वारा वो चेक दिलाए। सो दैट नाउ दे आर गोइंग टू, एक लड़की हैदराबाद आने के लिए उनके पास नहीं था। आज सेम गर्ल हैज़ मेड देयर पेरेंट्स टू स्टैंड। एंड अनदर एग्जाम्पल आई वांट टेल कि वो जब जीते थे तो वो हैदराबाद आए थे, एकदम से गोपीचंद और मेरे पैरों पे उनके माँ बाप गिर गए थे। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो बोला नहीं सर, ये मेंटली रिटार्डेड थे। सुबह से शाम तक नाइबर्स, रिलेटिव्स हमें ये ठूंस मारते थे, यार ये पागल लड़की को इन्होंने जन्म दिया है, इसका क्या होगा, ऐसा हर दिन हमें ये डर लगता था। लेकिन आप ये लेके आके चैम्पियन बनाए। अब नाइबर्स ही नहीं, काउंसलर से लेके मिनिस्टर तक, कलेक्टर से लेके कोई भी ऑफिसर हमें आके बधाई दे के जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल इट हैज़ चेंज। तो स्पोर्ट विल चेंज गाइस। एंड वन मोर गुड न्यूज़, अभी वो जापान में है, पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप। आज उनका हीट हुआ, शी हैज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। टुमारो 11:30 इज गोइंग टू बी फाइनल इन जापान। इफ ही गेट्स अ गोल्ड मेडल, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर इंडिया। It's a world championship in her category. That category is called T20. Okay. Then Duti Chen का तो स्टोरी, she used to come here एशियन गेम से पहले, क्योंकि ये बच्चों में ये होता है, टोल्ड यू, हाइपर एंड्रोनिज्म बोलते हैं, इनमें हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है, तो वो इतना अग्रेसिव रहते हैं। फिर मैंने फाइंड आउट किया, मैंने बोला आप ब्रह्मा कुमारीज में जाओ डेली। सो बिफोर एशियन गेम्स 3 months she used to come regularly here and everybody knows here, and she went on to win 2 silver medal in Asian Games in 2018 Indonesia, and she's been given 3 crores rupees by Asian Games, Odisha government, and Arjuna award. ठीक है, that's what her when she came here,
तो हाइपरऑर्गेनिज्म की वजह से उनको बैन कर दिए गए थे। तो गांव में था तो मुझे फ़ोन किया, सर मुझे कोई यहाँ नो बडी इज़ टेकिंग केयर। तो फिर मैं बोला गोपी चंद को पूछ के मैं परमिशन लेके इनको यहाँ बुलाया था। उन्होंने बोला व्हेन आई केम टू हैदराबाद मेरे पास 500 रुपये थे, आज मेरे पास 3 कार है एंड शी इज़ ऑफिसर इन ओडिशा माइनिंग, राइट, एंड शी गॉट ए अवार्ड एंड ऑल। सो हाउ यू कैन रिफॉर्म समबडीज लाइफ ओके विथ योर ओन स्किल्स, ये है। अभी नंदिनी आगासारा, इनके फादर रोड साइड टी बेचते हैं, यहीं यापराल में रहते हैं। रिसेंटली शी गॉट ए एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल इन हेप्टाथलन, राइट। आज वो एशियन गेम्स जीतने की वजह से आज ने काफ़ी लोगों को खाना खिलाया, मोर देन 60 पीपल टुडे शी हैज़ गिवन अ फूड, एवरीबडी वी वर वेरी हैप्पी, राइट। एंड ज्योति अर्राजी, शी इज़ नाउ 100 हर्डल्स एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट एंड नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। उनके फादर मदर भी वाइजाग में, उनके मदर घरों में काम करते थे, फादर एक ये थे। तो वी ब्रॉट हर एंड वी ट्रेन एंड नाउ इट्स रेस्ट इज़ ओवर। बिकॉज वन थिंग, हम लोग जो काम करते हैं ना, एक और एक लड़की थी रजिता, तो उनको भद्राचलम इंटीरियर प्लेसेस से हम लेके आए के ट्रेन किए थे। तो जब जीता तो वापस गए, उनके MRO कलेक्टर उनको सम्मान किए। तो उनको पूछे थे व्हाट यू वांट, तो उसके पास पैसा नहीं था, ये नहीं था। इवन सेम थिंग विद दूती चंद भी हुआ था। तो उन्होंने बोला हमारे गांव के लिए बोर डालो, उनका खुद के लिए कुछ नहीं पूछा, हमारे गांव के लिए बोर डालो। तो मैंने पूछा वाई यू डिड नॉट आस्क फॉर योर मनी, बिकॉज नहीं सर, यहाँ आप हमेशा दूसरों के लिए ही पूछते रहते हैं। तो हमें भी एक आदत हो गया, कुछ भी करें दूसरों के लिए किए। तो फिर दूती चंद का भी, जब उनके गांव में एशियन गेम्स के बाद में कीट यूनिवर्सिटी सपोर्ट करता है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। तो उनको बोले दूती आपको क्या चाहिए, तो वो बोला सर हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बनाओ। सो हम लोग जो काम करते हैं ना, बच्चे उसको देख के वो करते हैं, दैट्स व्हाट आवर रियल टीचिंग शुड बी, राइट। हम उनमें रिफॉर्म लाना है, दैट्स अ की पॉइंट। आई होप आई एम डन विथ इट, एंड इफ एनीबडी वांट्स आस्क और एनीथिंग, it's open. This is what my experience and journey with the spiritual. No, that's very interesting actually and quite inspiring. Just wondering that how do you identify that this person is talented? Because all of them are coming through very non-traditional approach. Very good question. Because I can say, in sporting knowledge, they say that it is a coaching eyes, right? If you have a coaching eyes, there is no depth in talent, right? आपने प्रोफेशन में भी अगर आप डीप में आ जाते हो, आपको पता चल जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर है, क्यों न्यू इनोवेशंस ला रहे हैं, बिजनेस, न्यू बिजनेस, कितने लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या है? बिकॉज व्हेन यू रीच द डीप, इवन स्पिरिचुअल, ये आपको पता चल जाता रहता है। सो यू हैव टू रीच दैट पॉइंट विथ सेल्फलेसली। हमारे लिए कुछ नहीं सोचना है। मैं डेली मैं ये प्रे करता हूँ, प्लीज़ गॉड सी दैट मेड मी मेक ए रोल टू गेट मेडल्स फॉर माई नेशन। मेरे लिए नहीं है, मेरे देश को मेडल दिलाने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, नॉलेज दीजिए, मेरे लिए नहीं। तो क्या होता है, यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन गॉड और नेचर, कुछ भी हो। So I hope that's why it comes, and lot of readings, right, lot of interactions and lot of seeing back athletes, right। हम ओलंपिक्स गए, वहाँ बॉडी उनका, अफ्रीकन्स अमेरिकन्स को बॉडी टाइप्स कैसे रहते हैं, मसल कैसा रहता है, क्या लेग लेंथ रहता है, बॉडी लैंग्वेज क्या रहता है, ये पूरा देख के हमें पता चल जाता है ना। हाँ ये 12-14 ईयर्स का है, हाँ ये उसके टाइप में जा सकता है। तो वी कैन डू इन योर ओन प्रोफेशन, कौन सा बिजनेस फ्लरिश, गो टू द हिस्ट्री, राइट, एवरीथिंग यू रीड, देन यू कैन कनेक्ट इट, देन यू कैन फाइंड आउट, अदरवाइज इट वोंट कम। एंड रेस्ट इज अगेन, इट्स ए डेस्टिनी ऑफ योर चाइल्ड एंड यू। इट्स नॉट दैट कि भाई बहुत लोग मेरे पास आते हैं, आप ओलंपिक कोच है, बड़े कोच है, बोलता भैया ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं इतना बड़ा कोच होता, मेरे पास जितने भी आते पूरे ओलंपियंस बनते हैं, फ्यू क्यों बन रहे? इट इज़ देयर टैलेंट, देयर डेस्टिनी है ना। मेरे पास 40-50 लोग ट्रेनिंग करते हैं, सभी ओलंपियंस नहीं बनते हैं, बन रहे, तो वो लोगों में रहता है। हम जस्ट वी आर हियर टू प्ले रोल। आई होप यू गॉट इट। Sister asked me what motivates me more, because
मुझे बहुत ये अच्छा लगता है जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जब हम गोल्ड मेडल जीतते हैं तो स्पोर्ट्स में एक रूल है, योर नेशनल फ्लैग विल बी फ्लाइंग एंड नेशनल एंथम विल बी प्लेड। मुझे सबसे बहुत मज़ा आता है जब नेशनल एंथम फॉरेन साइल पे होता है। एंड वन मोर थिंग, मैं जब भी किसी को हेल्प करता हूँ तो मेरा एवरी सेल ऑफ माई बॉडी विल बी डांसिंग। मुझे बहुत मज़ा आता है मैं कभी किसी को हेल्प करता हूँ, तो दैट्स रियली आई थिंक वही वेरी इम्पोर्टेंट। अपने प्रोफेशन, काफ़ी लोग ना अपना टैलेंट इंटरेस्ट कहीं रहता है, अपना प्रोफेशन अलग रहता है, शायद वो भी एक दिक्कत की बात है। बट रिसेंटली आई रेड वन बुक, अर्ली टू रिटायर, दैट इज़ 40 ईयर्स में अगर 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 गलत माँ बाप के वजह से या प्रेशर के वजह से अगर गलत प्रोफेशन में है तो 40 ईयर्स के अंदर आप करके फिर नेक्स्ट इनिंग में आपको जो आता है उसी में अगर इफ़ यू आर एबल टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, आई थिंक दैट इज़ अल्टीमेट। बिकॉज ये दो चीज़ मेरे पास थे, दूसरों को मदद करने से मुझे बहुत मज़ा आता है, चलिए वही मेरा प्रोफेशन बन गया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आता है। मतलब रात के 12 बजे भाई उसका ट्रेनिंग है, मज़ा आता है क्योंकि मुझे किसी को हेल्प करना है ना, वैसे दिस इज़ व्हाट सिंपल थिंग। Yeah, because Brahma Kumaris is a place, right? Whenever I feel come here, you know, you might have seen if you feel the vibrations, right? जब गेट के अंदर आते हैं तो आपको पता है, चल जाता है, right? You are into a different world. You all पूरा जो भी फीलिंग्स है, वो स्ट्रेस है, वो अपने आप चला, जैसा डॉक्टर को देखते हैं ना, आधा बीमारी ख़त्म हो जाती है अगर डॉक्टर फ्रेश होता है, तो ऐसा ही है। दिस इज़ अ प्लेस, राइट? आई ऑलवेज बिलीव दैट बिकॉज जो भी प्लेस में what is the difference, logical thinking, what is the difference between a temple or like this place? Because यहाँ जो भी आते हैं पॉजिटिव सोचते हैं, तो यहाँ पर हम वाइब्रेशंस छोड़ के जाते हैं पॉजिटिव, तो प्लेस पावरफुल बन जाता है। ऐसा ही आप बार शॉप में जाओ, वो जो भी जाता है झगड़ा करता है क्योंकि वहाँ पूरा नेगेटिव वाइब्रेशंस रहता है। सो आप बिकॉज इन द साइकोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज इन स्पोर्ट्स वी हैव टू हैव ए वर्ल्ड क्लास साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, तो दे नो द ट्रिगर पॉइंट्स, किसको कब गुस्सा आता है, किसको कब मोटिवेट आता है, ये उनको पूरा पता रहता है। एंड दे हैव ए सीक्रेसी ऑफ मेंटेनेंस। मेरा आपको नहीं बोलेंगे, आपका वो पूरा डाटा लेके आपको कौन सा पॉइंट ट्रिगर करता है, कौन सा पॉइंट आपको रिलैक्स करता है, कौन सा पॉइंट आपको मोटिवेट करता है, कौन सा सिचुएशन पे कौन सा पॉइंट, उनको पूरा पता रहता है। वी हैव ए सच ए साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल इट गोज इन हैंड इन हैंड, राइट? प्रोफेशन अलग होता है लेकिन ये मैक्सिमम एक ही लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो आप अगर नेशनल कैंप्स में जाते हैं ना, हर खिलाड़ी के रूम में ना छोटा सा मंदिर ही रहता है, हमारे स्पेशली इंडियंस। एंड ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में ब्रह्मा कुमारीज का सभी टेम्पल्स रहते हैं वहाँ ओलंपिक्स में। मतलब सी हाउ हाईएस्ट रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट हाईएस्ट स्पोर्ट। तो स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन, धर्म के सिवा कुछ नहीं है कोई फील्ड में। अगर कोई करा भी तो ज़्यादा देर नहीं रहता। मैं इसलिए बोलता हूँ नेशनल चैंपियन बनने के लिए और फिजिकल क्वालिटीज़ विल हेल्प यू टू बिकम ए इंटरनेशनल एंड टू कंटिन्यू इट इंटरनेशनल। यू हैव टू रिफॉर्म फ्रॉम द माइंड। नहीं तो फिर आप देखे होंगे ना, तेंदुलकर और कामली दोनों एक ही बार इंटरनेशनल में आए, वो चले गए वापस। क्यों? इज़ नॉट एबल टू रिफॉर्म हिमसेल्फ। तो हमें बहुत ज़रूरी है, जैसा स्टेज बढ़ते जाएगा आपका वीकनेसेस कम करते जाना है। मैं चैम्पियंस को भी बोलता हूँ, द ग्रेटेस्ट चैम्पियन इज़ हु डज लेस मिस्टेक्स। ऐसा नहीं कि मिस्टेक 100% नहीं करने वाला नहीं रहता, लेकिन आप मिस्टेक्स कम करते जाइए। आज कल ये मिस्टेक था, उसको मुझे कम करना है नेक्स्ट। सो लेसर इज़ द मिस्टेक, बेटर इज़ योर चैम्पियन, इवन इन लाइफ। तो इसलिए मैं, और एक मेरा सीक्रेट क्या है, आई राइट डायरी एवरी डे। यू कैन सी माई डायरी एंड आई राइट 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे। हैप्पीनेस मीन्स दैट डे व्हाट आर द थिंग्स मेड मी हैप्पी, एंड ग्रेटफुल, मैं उस दिन किस किस को मैं ग्रेटफुल हूँ। फिर न्यू पॉइंट्स, मतलब उस दिन मैं क्या सीखा। तो जब आप लिखते हैं, जब रियलाइज, तो आपको सिंपल, मैं तो सबकॉन्शियस को ट्रेन करता हूँ। जब आप सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं ना, बाहर का दुनिया अलग रहता है, अंदर आप अलग हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। बिकॉज सबकॉन्शियस आपको ड्राइव करते रहता है, वर्ड एवरीथिंग, ऊपर बाहर का अलग रहता है। सो यू हैव टू ट्रेन is subconscious. For that you have to travel more inside.
So this is what a karma yogi is, who is practicing yoga while doing all his karmas, performing all his actions, and yet he is very balanced in everything, right? We can see from his life, everywhere he is balancing and he is training that subconscious mind, and every day a student, which is very much important. The moment I say I know everything, I have everything, there ends the life and progress. So this is what we learn from all these dignitaries. Whenever he comes actually in Shanti Sarovar, he comes for walk, he just come for experiencing the vibrations. You know where he lives? Just across the road in SMR Symphony. And he says, as soon as he enters the gate, he feel that bliss and experience these vibrations, peace. And even I remember in COVID time also, he has taken permission from me to enter the campus because that time it was strict lockdown. So he asked, sister, can I come and just sit there and experience the power here? So that is what Ramesh Bhai is. Since many years he is with Brahma Kumaris, and he takes some support sometimes with, training the students also. Like he sends many, we have here some champions who are national players, going to internationals also, who is his disciples. So he is guru for so many people. And I know the coach also comes every Sunday evening talk. Many students, many players do come for just Sunday evening talk. I asked one girl, ఎందుకు వస్తావు నాన్న నువ్వు? I'm not teaching her separately mind power or anything. I just asked her, क्यों आती हो आप Sunday talks में? रमेश सर ने बोला है आप वहाँ पर जाएंगे तो आप भी द्युति चंद जैसे एशियन चैम्पियनशिप जीतेंगे. तो मतलब गोल कुछ भी हो, उनके लेवल में तो उनका गोल जस्ट चैम्पियनशिप, बट ही टीचेस देम टू कम टू positivity, to experience the positive vibrations, so that the mind is stable, yet it can think better and right decisions at the right time. Yeah, that is what in fraction of second I have to decide, and my body has to perform. It has to be aligned with my mind, my eyes, my hand coordination, everything to be aligned. So how we get that kind of power, that is what he was just sharing about from his experience. It was really very inspiring. You feel that? So I am sure you must be taking some kind of message from his experience. Not necessarily all these success mantras I have to use, but practice going means internalizing yourself, so that you will get lots and lots of treasures inside. Because no treasures are outside actually. Just now before he come here in the hall, we were talking. उस लेवल में तो पार्टी करना, खाना पीना, सबसे मिलना. And he says, I am good with my own self, sister. I don't need to go anywhere. I don't need to go anywhere to experience that happiness. So internalizing, that is what he was sharing. एक झाड़ के लिए ऊपर ग्रो करना बहुत ईजी है, लेकिन अंदर जाना, अंदर के जो हार्ड सरफेस है या रॉक्स है, पानी है, उसमें से भी आप निखर के आना या अपने को बड़ा बनाना, उसमें बहुत मेहनत है. लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क, बट लक प्लेस ए मेजर रोल. बट टू क्रिएट दैट लक अगेन यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिविटी, है ना? हाँ, अगर किसी को हम वही बात कर रहे थे, भाई साहब बोल रहे थे जस्ट बिफोर वी कम हियर, आपके जैसे रहना या हमारे जैसे रहना सभी को पॉसिबल नहीं है दीदी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें होते होंगे और सब पॉसिबिलिटीज़ भी होते होंगे, लेकिन अगर सामने आए तो भी उसको लेने के लिए ताकत भी नहीं है. होता है ना ऐसे, बहुत सारे चीज़ें होते होंगे, बहुत सारे मीन्स लोग भी है, पैसा भी है, पोजीशन भी है, हर चीज़ है, सक्सेस आपके डोर स्टेप्स पर है, लेकिन उसको लेने के लिए ताकत भी नहीं है.
है ना. तो it needs a lot of practice inside and not one day thing. It is a journey. But I never should leave away because we feel many times that हाँ हो गया एक दिन का. नहीं, एक दिन का नहीं है, लंबी ज़िंदगी है और हर रोज़ हम करते ही रहे तब I can reach that destination very easily and I can pass with flying colors. That is the success actually. So I hope you all will practice this kind of things. Maybe it feels little difficult some moments, but I should not leave. I have to be very strong with my own self. I have to motivate myself. हाँ, आज नहीं तो होगा. सिर्फ गेम में ही नहीं है ना भाई साहब. गेम में ही नहीं है, लाइफ में भी हर्डल्स बहुत सारे आते हैं. कभी फेस करते हैं, कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं. लेकिन जब भगवान को साथी बनाए और अपने आप में बहुत विश्वास रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल हैव सक्सेस इन योर लाइफ इन एनी फील्ड यू टेक. इट्स नॉट जस्ट द स्पोर्ट्स बट एट द एंड ऑफ द डे माई लाइफ. सो इन लाइफ स्पोर्ट आई हैव टू प्ले good and every day I have to play and I have to improve myself, then only the success is there. So we really cherish these moments which you spent. I am sure you are also cherishing these moments. It is not log kitna sune ya kitna wo enjoy kiye, lekin how I enjoyed myself while sharing. That is what I always feel, है ना. आप कितना लिया ये इनसे भी ज़्यादा मायना रखता है मेरे लिए. मैं किस भाव से, किस स्टेट ऑफ माइंड से मैं सुनाई. 2 भी आए, 4 भी आए, या कुछ समझ में आया नहीं आया वो अलग बात है. उनके स्टेट ऑफ माइंड जैसा है वैसे ही सुनेंगे वो भी. लेकिन मैं कितने विश्वास से, मैं कितने खुशी से मैं सुनाई और मेरे को कितना अच्छा लगा. हाँ, इफ़ आई पुट 100% एफर्ट. आरिफ सर है जो गोपीचंद जी का भी कोच है, जो इंटरनेशनल लेवल में बैडमिंटन को लेके आए हैं. भाई साहब को अभी तो आई थिंक ही 75 अबाउ 75 और नियर 80. सो वेन एवर आई गो ही इज़ विथ फुल स्पिरिट्स. हार्ट का ऑपरेशन हुआ लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर. फ़ोन किए वसंता बहन, हार्ट में स्टंट बिठाए, ये हुआ वो हुआ. आप इतना मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं भाई साहब. फुल टाइम कोचिंग, फुल टाइम स्टेडियम में ही दिखते हैं इतने सालों से. अभी भी ज्वाला गुट्टा एकेडमी में जाके उधर ही घर बना के दिए हैं, क्योंकि ऐसे कोच को कोई खोना नहीं चाहते हैं. सेल्फ ड्राइव नहीं होता है अभी, तो उनको घर बना के दिया है. वहाँ एकेडमी में ही रहते हैं और पूरा संभालते हैं. एंड वी फील दैट कोई बड़े घर में बैठे तो कितना तसल्ली मिलती है ना, कितना आराम रहता है कि हाँ कोई है देखने वाले. मैं हूँ या नहीं हूँ लेकिन कोई बैठे हैं. तो मेरे को लगता है उस एकेडमी में जब भी जाती हूँ कि भाई साहब चला रहे हैं. ज्वाला गुट्टा तो है ही है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट देखते होंगे, लेकिन कोई बड़े उनको बिठाए हैं. तो भाई साहब हमेशा बोलते हैं गिव 100% बेस्ट वसंता बहन एंड यू विल गेट ऑल द मीन्स रिजल्ट्स. सो हाउ मच एफर्ट्स आई एम पुटिंग. एफर्ट्स में कोई कमी ना हो. फिर सक्सेस आए या ना आए उसकी बाद की बात है, वो आएंगे ही, क्योंकि कर्म और धर्म, हाँ देखा ना, हमने सुना ना. सो कर्म तो अपने साथ ही आने वाला है, लेकिन मेरा एफर्ट्स कभी कम नहीं होना चाहिए. तो ऐसे सक्सेसफुल रहने के लिए बहुत सारी बातों का आपने बहुत अच्छे से बताया. थैंक यू वेरी मच एंड अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. त्रिनाथ भाई आप भी आइए. And MGPL Narayanaya, please come. So both of them are also living in SMR. So everyone reached heights in their life. They are not normal people. Please come. Narayan Bhai was in TCS. He was vice president. Right? And many things he is means doing now also. So how he achieved so heights in life? Sometimes you also share your success story. And Trinath Bhai also achieved so much in his banking career as well as in spirituality. So we appreciate all of you being here.
Narayan Bhai is saying you made us proud being in SMR. We will end with a beautiful song by Eva, Big Life. Means connected with the topic. So it's big life, how we have to achieve. So Eva also is one of the student in Balabrindavanam. Every week she comes and she gets a lot of positivity being here. Sometimes she will share her experience how, means she was very dull or so much of pain and sorrow, but now she is very happy, very, very happy. So how she got that motivation from Brahmakumari Shanti Saror, coming only once in a week, but she gets a lot of motivation from here. So she will sing a beautiful English song. Hello everybody, Om Shanti. My name is Eva. Today I'll be singing a song called Big Life. First of all, I would like to thank Lindsay Miller who created this beautiful song. And I also want to thank my mother for sharing this song to me. And I also want to thank God for giving me this opportunity to sing here. So the song is called Big Life, and here it goes. Are you one of those people who dreams big dreams? Do you wonder if they're possible? Do you wonder what they mean? Well, if you have the courage to keep following your heart, well, you can do anything, no matter who you are. You can have a great big life. You can make a great big difference. You can follow your heart, believe in yourself and chase your dreams. You can have a great big life. You can make a great big difference. You'll find a way, no matter what they say. You're capable of living a big life. Big life, living a big life. You're never too young, you're already great. You're kind and you're helpful, no, you don't have to wait. 'Cause you have great ideas and you know in your heart that you can make a difference, no matter who you are. You can have a great big life. You can make a great big difference when you follow your heart, believe in yourself and chase your dreams. You can have a great big life. You can make a great big difference. You'll find a way, no matter what they say. You're capable of living a big life. Big life, living a big life. Anything is possible when you believe in you. You can do anything that you set your mind to. 'Cause you have big ideas that are needed in this crazy world, it's true. So take action and be persistent and you see what you can do. 'Cause you can have a great big life. You can make a great big difference when you follow your heart, believe in yourself and chase your dreams. You can have a great big life. You can make a great big difference. You'll find a way, no matter what they say. You're capable of living a big life. Big life, living a big life. Thank you. You can have a big life, right? You can make difference. So you can make difference. Just now before we come, we were talking on the seashores. A lot of starfish were out from the sea, right? एक बच्चा जा रहा था वहाँ पर और वो पानी में फेंकता जा रहा था स्टारफिश को. तो कोई ने बोला कि इधर करोड़ों स्टारफिश बाहर है पानी से, वो वैसे भी मरने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं इतने करोड़ों के लिए. उन्होंने बोला इन सभी का डिफरेंस मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिसको मैं पानी में फेंका एटलीस्ट वो तो जिएंगे ना. सो आई कैन मेक डिफरेंस फॉर दोज स्टारफिशेस. तो आई कैन मेक डिफरेंस इवन इन 1 life, 2 lives they can change, then that will be a big thing, right? So you also be an inspiration for everyone.
So I have an announcement. Kids Summer Camp is there on 23rd, 24th and 25th from morning 9:30 to 12:30. So there will be different things in it, value activities, infotainment, sessions on mind power, positive thinking, positive living, meditation, group activities and many more. And one good thing is Ramesh Bhai also will be sharing few tips with all the children, how they have to grow, how to have to achieve the great heights in life. हाँ, तो वो भी सुनाएंगे. और अमित भाई है और एक भाई जी, उनका भी सेशन रहेगा, अमित मलिक का, डॉक्टर अमित मलिक. And many brothers and sisters from Brahma Kumaris also will be sharing different things for the kids. And age group is 9 to 14 years children. And you can register online from our Brahma Kumaris website, but you go in shantisarovar.org. This website, you have the form to fill up and you can register free. And even the guides or parents, whoever come, they will also have different session along with children. Children session will be and the parents session also will be there. So make use of this opportunity and thank you very much. Keep coming every Sunday and empower yourself, grow yourself. Om Shanti.